Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic of comparing quantities and we are working on compound interest. Yesterday we have discussed finding compound interest by using simple interest formula itself. We used the amount for the next year including interest. So interest on interest is considered to be the compound interest. So this is what we got it. When it is a simple interest, the interest is lesser than the interest in the compound interest for the equal year and equal rate. All these things we have seen yesterday. But every time continuously solving it step by step using simple interest becomes bit difficult. So here we have simple formula for compound interest. So formula for compound interest is not like a simple interest where we get interest. In the formula of compound interest we get directly amount. So what is the formula? Amount is equals to principal into 1 plus r upon 100 raised to n. Now what are all these things, all these values? A for amount, which gives me directly principal added to the interest. So we get direct amount in this formula. P for principal, 1 plus r for rate of interest per annum upon 100 of course, and n is nothing but number of years, that means time. So in this case I will just try to solve it. So amount will be equal to principal is 9000 into 1 plus r is 10 upon 100 raised to 3. So 9000 0 get cancelled, so it will be 11 upon 10 raised to 3. So 9000 into 11 into 11 into 11, that is 11 cube upon 10 into 10 into 10. So these 3 zeros and these 3 zeros will get cancelled. So it is 9 into 11 cube. I hope you remember 11 cube. It is 1331. If you don't know, then 11 square into 11 you can do 121 into 11 also you can do and find out. 9 ones are 9. 9 3s are 27, 2 carry 9 3 are 27 plus 2, 9, 2 carry 9, 2 1 are 9 plus 2, 11. Now this is the amount. But what I'm asked for? Compound interest. I'm just asked interest. So compound interest will be equal to amount minus principal. Of course you got that. If I subtract the principal from this, I'll get the interest paid. So 11,979 minus 9,000 can give me directly compound interest. Got it? Understood? If the same question would have been asked for simple interest, I would have done in this manner. SI is equals to PTR upon 100. So 9,000. T matlab time, which is I think 3 years, and R is 10 upon 100. So 0 get cancelled. 9 3s it's 90, right? So 27 and 2 zeros. So 9,000 plus this amount कितना हो जाता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 9000 प्लस 2700. So it is 9 plus 2 11 700. You can easily understand this is the amount for the simple interest and this is the amount for the compound interest, which is quite larger. तो इज दिस क्लियर कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं? समझ में आ गया. तो ये फॉर्मूला इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि मैथ्स मेक थिंग्स ईजी. Okay, see, finding the formula, finding the compound interest using simple interest becomes very tedious job. एक ईयर का फाइंड करो, फिर ऐड करके फिर दूसरे का फाइंड करो, फिर ऐड करके तीसरे ईयर का फाइंड करो, एंड देन ऐड ऑल दिस टुगेदर एंड देन you get a compound interest or you may be getting a amount. But यहाँ पे क्या होता है, directly in one formula itself you get the final answer. And that's what I say कि maths is not difficult, rather maths makes difficult things easy. Okay, so let's move ahead now. So you got that कि ये 3 years होता है, ये एक natural number है. What if you get the answer in the fraction?
that year in the fraction. So here is the question. So let's see how can we do for such question where the value or the rate, the time is given in the fraction. It is 2 complete 2 1 by 2. I know that the amount is equals to principal into 1 plus 1 by 100 r by 100 raised to n. This is what my amount is. The principal is 9000 again. 1 plus rate is 5, 10%, the same rate it is, okay. And the power is 2 complete to 1 by 2, that means 2 integer 1 by 2. So 2 to the 4, 4 plus 1, 5, 5 by 2 it would be. So do you think it is easy to find the answer in this manner? Like this will be 9000 and here it will be 11 upon 10 raised to 5 by 2. Do you think it's easy to find the answer for this? Yes, it is just impossible to find oral answer for this, or any which ways. This is not possible to solve it. Then what to do? Here the confusion is. What can we do? So let me just tell you the way how can we do such kind of questions. The first of all, what can we do here is 2.5 year I can split into two parts. One is 2 plus half year. I'll find a compound interest of 2 year and which is easy. So let us find out compound interest and of course the amount. हम लोग total amount find करते हैं. तो amount is equals to 9000 into 1 plus 10 by 100 raised to 2. हम just 2 साल का कर रहे हैं. 9000 into 11 upon 10 the whole square, which can be 9000 into 121 divided by 4 zeros. एक मिनट. Yes. It is 10. It would be no 9 by 10. 10 into square it is. So it is just 10 square is 100. So 0 get cancelled. 0 as it is of this. 9 ones are 9. 9 twos are 18. 8 1 carry. 9 ones are 9 plus 1 10. So this is the amount that what I will be getting after 2 years. Of course, with compounded annually or compounded with that particular rate in 2 years. But now we are left with what? Half an hour more. Now for that half an hour, I'm not going to use compound interest. I'll be using a simple way of simple interest, but while choosing principal, I'll be taking this principal. So my principal for half year will be equal to is 10,890. Rate would remain same, 10%, and year is half. So I'll find out a simple interest on that. कितना होगा simple interest? PTR upon 100. This would be principal 10,890. Time is half year into rate is 10. देखो upon 100. You can divide this by 5. 0 ये 0 get cancelled. 5 ones are 5. 2s are 2 5s are 10. 2 4s are 8. 2 4s are 8.5. So this is the amount that what I am going to get as the interest. So what will be the amount? A amount will be equal to principal plus interest. Principal क्या था मेरा? ये था. So 10,890 plus 544.50 और 5. तो 0.50 यहाँ पे लिखा. 0 plus 4 is 4. 9 plus 4 is 13. 1 carry. 8 plus 6 14. 1 carry 1 1. So this is the total amount I am going to get after how many years? 2.5 years. After 2.5 years, this is what I am going to get the amount, total amount, final amount. And this is nothing but compound interest only, because we have found the interest on interest. So this is the compound interest, and I can easily find out the compound interest by subtracting this amount from the actual principal, that is 9,000, and I will be getting easy answer here. कुछ 2,434.5 will be my answer. देखो कितना easy है. मतलब क्या है, in case if you get some kind of a fractional amount or fraction year as a power,
then you can just avoid taking that fraction, complete for the number, and then find out for the that remaining fraction as in form of a simple interest, and then add them together to get the final compound interest. Understood? Getting it? श्योर ना? कंफर्म? चलो ऐसे और एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस ट्राई दैट. और एक क्वेश्चन ऐसी ऐसी कैटेगरी का करते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल आई एम टेकिंग. प्रिंसिपल इज आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन दिस टाइम. प्रिंसिपल इज कुछ 5000 लेते हैं. रेट कुछ ऐसे लेते हैं 5%. एंड टाइम जो है हम लोग लेते हैं 2.5. 1/3 लेते हैं. चलो 2 × 1/3. ठीक है. 1/3 मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 ईयर 4 months. 2 ईयर 4 months. तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर में. तो 2 ईयर 4 month का मतलब क्या होता है? 2 ईयर, इसको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 4/12 करना पड़ेगा. ओके. तो इट इज़ 4 1 4 3 12. तो इट इज़ 1/3. ठीक है. तो इसको भी कन्वर्ट करना इसमें आपको आना चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्टिंग इन ईयर. ये ईयर है और ये ईयर एंड मंथ पे है. तो मंथ को आप 12 से डिवाइड करो तो यू गेट कन्वर्ट दैट इनटू ईयर. सो वेरी सिंपल. तो मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते समझ में आ गया. जैसे कि 6 मंथ है, 6 मंथ ईयर में कन्वर्ट करो 6/12 1/2 मंथ 1/2 ईयर. ओके. 9 मंथ्स है तो 9 मंथ्स को आप लोग ईयर में कन्वर्ट करो 9/12. तो 3/4. दैट्स इट. समझ में आ गया. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो ये 1/3 का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 2 ईयर्स का हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर क्या आएगा 2, मतलब ऑफकोर्स n पहले. तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 5000. 1 + 5/100 रेज टू 2 लेते हैं. 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा. तो इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट 5000 21/20 रेज टू 2. तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5000. 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 400. 0 0 ऑफ कोर्स गेट कैंसिल एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई इट. तो 5 × 441. ठीक है. तो मैं सेपरेटली करता हूँ यहाँ पे. तो ये आएगा 22050 डिवाइड बाय 4. ओके. तो इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 आई एम गोइंग टू गेट just a minute. Give me 1 minute. ये आता है डिवाइड बाय 4 किया तो 5512.5 ऐसे कुछ तो आता है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज नथिंग बट अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. नाउ आई वांट 1/3 जो भी है उसका भी अमाउंट चाहिए एंड द रेट इज सेम 5%. तो उसके लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्टली. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. दैट इज PTR अपॉन 100. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ऐसे फॉर 1/3 ईयर हम लोग ये करने वाले. ठीक है. यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा लेना पड़ेगा, वो 5000 नहीं ले सकते, ये लेना पड़ेगा. तो 5512.5 इंटू टाइम इज़ 1/3 इंटू रेट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है. तो 100 को डिवाइड करना है तो उसको तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में. तो डायरेक्टली नाउ आई कैन डिवाइड बाई 3 to this particular number whatever I get in the decimal and then multiply by 5, or I'll multiply by 5 and then divide by 3. So that would be better option. तो 5 क्या है वो नंबर
5512.5, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 2756.2.5 डिवाइड बाय 3 एंड 100 से डिवाइड करना है। तो इसको अगर मैंने डिवाइड बाय 3 किया तो वो आता है 9187.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी 100 से डिवाइड किया मतलब क्या आता है 91.875, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट माई रुपीज़, दिस इज़ व्हाट माई आंसर इन रुपीज़। बट ये क्या है, इंटरेस्ट है, दिस इज़ द इंटरेस्ट। तो अभी अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 5512.5 प्लस 91.875। ये तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। ये अमाउंट मिल गया, टोटल अमाउंट मिल गया, तो उसके बाद टोटल इंटरेस्ट, इफ आई सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 5000, आई गेट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल ऑफ द रिक्वायर्ड ईयर। बात समझ में आ गई, क्लियर, अंडरस्टैंडिंग। और एक क्वेश्चन देते हैं इसी कैटेगरी का, थोड़ा सा वियर्ड सा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसलिए अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। व्हाट यू मीन बाय कंपाउंडेड हाफ ईयरली? जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई होता है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ऑफ ईयर के बाद भी अप्लाई हो सकता है। ओके, एंड वो ज़रा ज़्यादा अमाउंट आती है कंपेयर टू कंपाउंडेड एनुअली। Okay, when it compounded half yearly, the amount will be more than the compounded annually. Remember that. हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, मतलब एवरी हाफ ईयर के बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट काउंट करेंगे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट शुरू करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, रेट जो होता है वो हमेशा पर एनम ही होता है। इन एनी ऑफ सच क्वेश्चन आपका जो रेट होगा वो हमेशा क्या होगा, पर एनम ही होगा। मतलब पर एनम जो रेट होता है उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईयर को भी कन्वर्ट करना होता है हाफ ईयर्स में, ये कैसे करेंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन शॉर्ट टाइम। तो इन सच केसेस आपको करना क्या होता है, देखो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 9000, रेट होगा, जो रेट है वो ईयरली है, तो हाफ ईयरली कैसे करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। हाफ ईयरली का रेट क्या होगा, 5/2 और 2.5 एज यू विश। टाइम होता है कितने हाफ ईयर्स इस टाइम में दिए हुए, इस टाइम में कितने हाफ ईयर्स है। देखो एक ईयर में 2 हाफ ईयर होता है, राइट, एंड ऊपर वाला 1 हाफ ईयर, मतलब 3 हाफ ईयर हो गए। मतलब ये जो होगा 3/2 इंटू 2, दैट वुड बी 3। तो 3 इज नथिंग बट द टाइम। समझ में आ रहा है, कितने हाफ ईयर्स उस ईयर में है, दैट टू फाइंड आउट का मतलब होता है हाफ ईयरली कंपाउंड करना। ठीक है, तो समझ में आ गया, मतलब करना क्या, देखो रेट को हाफ करना है एंड टाइम को डबल करना है। व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर हाफ ईयरली करना क्या होता है, समझ में आ गया, रेट को हाफ करना है एंड टाइम को डबल करना है, दैट्स इट। ठीक है, वो 3 कैसे आ गया, समझ में आ गया ना, 1 कंप्लीट और 1 इंटीजर 1/2 मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 आ गया, राइट। अभी ये फॉर्मूला और ये वैल्यू, ये इन्फॉर्मेशन डेटा यूज़ करके यू हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए इज इक्वल्स टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। प्रिंसिपल इज 9000 ऑफ कोर्स, 1 प्लस आर बाय 100, आर कितना है 2.5, आई कैन राइट एज 5/2 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 3। तो ये क्या आता है देखते हैं, 9000 1 plus 5/200 it would be, remember this, ये 2 नीचे आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, 5/200 कैसे नीचे आता है देखते हैं, 5/2/100 अपॉन 100 मतलब 100/1। डिवाइड करते हैं हम लोग किसी को भी, तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट वुड बी 5/2 इंटू 1/100, रीजन हुआ नहीं है 5/200, सिंपल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 ज़ा, नेवर फॉरगेट टू डिवाइड दिस, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 40 हो गया, 40 प्लस 1 41 अपॉन 40 रेज टू 3। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।
नाउ कंपाउंडेड हाफ ईयरली करने के लिए कैलकुलेशन तो बहुत डिफिकल्ट है. 41 का क्यूब आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन 41 इंटू 41 इंटू 41 करना पड़ेगा. तो 9000 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 divided by 40 into 40 into 40. So 0 0 and 0, and see these zeros get cancelled. 4 4s are 16, 16 4s are 64, and 41 का क्यूब देखते हैं. इट इज़ 68921, एंड उसको अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 620289. और आपको इसको किससे डिवाइड करना है? 64 से. तो मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको. द आंसर हियर इज़ 9692.01. ये आता है इसका आंसर. हाँ, 64 से डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट टेल मी. कुछ नहीं करना, 620289 को 64 से डिवाइड करना है. तो पहले 2 नंबर लो, तो नहीं जा रहा है क्योंकि 62 है, तो 3 नंबर लो. तो 64 को गेस करके देखो कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 620 के पास आता है नंबर. तो दैट इज़ द वे हाउ यू कैन डिवाइड इट. ओके, तो ये गेसिंग से करना होता है और इसकी हैबिट लगनी चाहिए. यू हैव टू डू दिस. ओके, तो ये होता है कंपाउंडेड क्या, हाफ ईयरली. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या याद रखना है? सिंपल सी बात याद रखनी है कि टाइम जो है वो डबल हो जाता है एंड रेट जो है वो हाफ हो जाता है. याद रखो, टाइम क्या होता है? डबल. एंड रेट क्या होता है? हाफ. अगेन आई रिपीट, टाइम डबल, रेट हाफ. तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट, और आपको वो आज कंप्लीट कर देना. छोटे, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, कम है. ये पहले 2 क्वेश्चंस, फिर और 2, ठीक है, और फिर और 2. ओके, तो ये क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट करने हैं 5. ओके, ऑल द क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. तो सबसे पहले देखेंगे द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए. यू आर एक्सपेक्टेड दैट कि ये प्रिंसिपल है, टाइम इज़ 3 years, रेट इज़ कुछ ऐसे वियर सा दिया हुआ है. तो रेट को मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है. इट इज़ 12 कंप्लीट 1/2, 12 इंटीजर 1/2. तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, तो इट इज़ 25/2% हो गया रेट. ठीक है. कंपाउंडेड एन्युअली तो बोला है. तो देखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन. तो प्रिंसिपल कितना है? 10,800. ठीक है. 1 प्लस आर, व्हाट इज आर हियर? इज 25/2 अपॉन 100 रेस टू एन. एन क्या है? 3 years. अब इस 2 को क्या करेंगे? वो तो नीचे चला जाएगा, है ना. तो इट इज 1 प्लस 25/200 होगा रेस टू 3. 25 1 ज़ा 25, 8 ज़ा 1/8. तो ये आ जाएगा 10,800. 1 प्लस 1/8 विच विल बी 9/8, राइट, रेस टू 3. तो दिस इज गोइंग टू बी 9/8 रेस टू 3. 9 का क्यूब तो पता होगा आपको, है ना, क्या होता है. सो 10,800 into 729 upon 512. 8 का क्यूब इज 512. और यू कैन गो फॉर 8 into 8 into 8 इफ इट इज़ डिविजिबल बाई 8. आई थिंक इट इज़ डिविजिबल बाई 8 है ये नंबर, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, तो वो भी आप लोग कर सकते हो. तो इट इज़ 8 into 8 into 8. ठीक है. तो 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा, तो मैं तो बोल रहा हूँ आप खुद से करो. तो मुझे लग रहा है कि वो नंबर डिविजिबल है. मैं जितना करूँगा उतना आप लोग लेज़ी बनते जाओगे. वो डिविजिबल है, एक बार डिविजिबल है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा खुद से. 64 है, उसके बाद जो बचता है वो. ठीक है. तो वो 64 से आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विद दिस 729, एंड दैट्स इट, डन.
ठीक है, आई नो द क्वेश्चंस द कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट बट यू हैव टू डेवलप हैबिट. तो ये डिवीजन जो आता है मैं दिखा देता हूँ. इट्स 350 ऐसे कुछ तो आता है. एंड दैट इफ आई मल्टीप्लाई with 7 to 9, so I get a very small number 9,84150 divided by 64. तो इसको प्रॉपरली डिवाइड करो. 9,84150 डिवाइड बाई 64. और ये हैबिट लगनी चाहिए आपको. यू मस्ट नो टू डू दिस कैलकुलेशन. एंड वो होगा आपका कंपाउंड. इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल में से सेपरेट करो. दैट्स इट. याद आया? समझ में आ गया? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज कंपाउंडेड एनुअली ही है, जहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन, कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन 2.5 ईयर के लिए. तो अभी 2.5 ईयर के लिए मतलब क्या करना है आपको, मैंने बोला है ऑलरेडी. 2 + 1/2 मतलब 2 के लिए आधा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाफ के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के फाइंड इट. समझ में आ गया ना? राइट. नेक्स्ट वन देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली में होता क्या है, रेट बिकम्स हाफ, तो ये हो जाएगा 4%. एंड टाइम बिकम डबल. ओके, टाइम बिकम डबल मतलब देखो ये 3/2 टाइम है. वन इंटीजर 1/2 मतलब 3/2, उसका डबल मतलब 3 ईयर्स. और इफ़ यू वांट टू चेक इसमें कितने हाफ ईयर है वो चेक करो. कितने हाफ ईयर है इसमें? 3 हाफ ईयर्स है. सो दैट्स हाउ वी हैव टू राइट इट एंड यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो इसमें भी देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है? हाफ. हाफ मतलब 9/2. आर हो जाएगा 9/2%. एंड टाइम कितना हो जाएगा? 2. क्यों 2? 2 साल है, 2 का डबल. टाइम गेट्स डबल. ये देखो यहाँ पर भी हाफ ईयरली में है ना, तो इट विल बी रेट विल बी इक्वल टू 4%. एंड टाइम क्या होना चाहिए? ऑफकोर्स हाफ ईयरली मतलब 2. दैट्स इट. अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी वेरी सिंपल. सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, प्रैक्टिस करो. थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा. यू कैन टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इफ यू वांट, बट दैट टू वेरीफाई, नॉट टू copy the answers or not to calculate it. ठीक है, of course you have got answers at behind, you can verify your answers whether they are correct or no. Fine. These are the questions from the textbook itself. So textbook exercise में क्वेश्चन है. हम लोग धीरे इसलिए जा रहे हैं so that I am giving you time to work on calculations. Okay, unless and until you solve it you will never get the confidence. Okay, so I am just requesting as well as hoping that you all will be properly solving it. डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आता है आपको डिवीजन, तो मुझे बताओ. आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन द डिवीजन एज वेल. फाइन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू.